Use a tissue for cough. Use hand sanitizer gel. Maintain social distancing. Stay apart. Avoid touching your face. Stay safe, stay healthy and stay home. خوشیوں کا دور دورہ ہے اسٹار ایشیا نیوز پہ جیزی 10 نیو ایئر اسپیشل ہے. جسٹ 2 گھنٹوں کی دوری پہ 2018 جب وہ ناک ناک کرنے والا ہے. 17 جا رہا ہے, 18 آنے والا ہے. وے سجنا آ کے مل جا لب دے نہنا آ کے مل جا ساری ساری رات سوچ سوچ روتے رہنے. شوبز کا سال کیسا رہا؟ کافی موویز ریلیز ہوئی ہیں اور کافی اچھی ریلیز ہوئی ہیں. ہاں, پنجاب نہیں جاؤں گی. میرا 24/7 لک ہلنا ہلنا ہلنا. احمد آپ بتائیے یہ سال کیسا رہا؟ دونوں چیزیں چلتی ہیں لائف میں. جب تک کوئی مشکل نہ آئے تو تب تک سمجھ نہیں آتی کہ اچھے کی طرف جانا کیسے ہے. دیکھیے پروگرام نیو ایئر اسپیشل جیسی ایٹ 10:10 پر صرف اسٹار ایشیا نیوز پر. السلام علیکم ناظرین, پروگرام آن ریکارڈ کے ساتھ میں ہوں عید محمد. تو ناظرین, ہم اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں ملک میں ہونے والی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں اہم سٹوریز پر جو کرنٹ حالات حاضرہ پر ہوتی ہیں. تو ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جاری محاذ آرائی پر ہم بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کو 2 سال کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ان 2 سالوں کے دوران کیا کھویا کیا پایا, اس پر اب بھی ہم بات کریں گے. تو آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے سینئر تجزیہ کار, سینئر صحافی اور اینکر پرسن مزمل سوہر وردی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کے حوالے سے ہم جانیں گے شیخ مقبول صاحب سے, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. اور اس کے ساتھ ہی ہم پاکستان تحریک انصاف کی ترجمان حکومت پنجاب سعدیہ سہیل رانا, ممبر صوبائی اسمبلی بھی ہیں اور رہنما پاکستان تحریک انصاف, ان سے بھی ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کو وہ کس تناظر میں دیکھتی ہیں. اور 2 سال کے عرصے کے دوران پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان محاذ آرائی بالکل اپنے عروج پر رہی. کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے لفظی گولہ باری کی جاتی ہے, جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لفظی تیر برسائے جاتے ہیں. اور یہ جس طرح حال ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ عمران خان جو ہے کہ وہ خطرہ ہے پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے اور پاکستان کی عوام کی صحت کے لیے, جبکہ اسی پر ہی جواب دیا وفاقی وزیر پاکستان تحریک انصاف کے مرکز میں مراد سعید نے بھی, انہوں نے بھی بھرپور اس کا جواب دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سے اپنا قد بڑھانا چاہتے ہیں. تو یہ لفظی گولہ باری آئے روز ہوتی رہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے. تو ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم اس کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو ہٹائے جانے کی ایک بار بازگشت سنائی دے رہی ہے, سیاسی حلقوں میں بھی اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو ہٹایا جا رہا ہے یا نہیں, اس بات میں کتنی صداقت ہے, اور پاکستان کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کے بعد کون ہوگا پنجاب کا وزیر اعلیٰ, عبدالعلیم خان یا میاں اسلم اقبال یا کوئی اور. اسی حوالے سے ہم تفصیلی رائے جانیں گے اپنے سینئر تجزیہ کاروں سے. پاکستان پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے کیا موقف ہوگا, پاکستان تحریک انصاف کا اس پر کیا موقف ہوگا, پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کا بھی ہم جائزہ لیں گے. اس میں دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف جب برسر اقتدار آئی, اسی مہینے میں آئی تھی برسر اقتدار, تو ان کا کہنا تھا کہ ایک 100 دن کا ایجنڈا انہوں نے عوام کے سامنے رکھا تھا, 100 روزہ پلان تھا, لیکن وہ بھی عملی طور پر اس پر عمل ہی نہیں کیا جا سکا. وہ سامنے ہی نہیں ہے کہ 100 روز کا جو ایجنڈا تھا اس میں
किस हद तक कामयाबी मिली। इसके बाद 11 नकात पेश किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन वो भी अपने पाया तकमील हतमी नताइज नहीं दे सके। इसी पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे मुजम्मल सोहरावर्दी, सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफ़ी, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी महाज आराई से किसको फायदा हो सकता है, किसको नहीं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की खामोशी क्यों, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम सबसे पहली स्टोरी हम शामिल करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी महाज आराई पर। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन मुजम्मल सोहरावर्दी साहब ने। जी मुजम्मल सोहरावर्दी साहब, बताइएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो महाज आराई है, या ये सूबे के इक़्तिदार के लिए है या कि बात कुछ और है? नहीं, ये कोई सूबे के इक़्तिदार के लिए नहीं है। सियासी जमातों के दरमियान इस तरह की महाजराई मामूल की बात है, वो दर्जा हरारत बढ़ा के रखती हैं। हमने माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ऐसी महाजराई देखी है। हमने इसी तरह की महाजराई जो है वो फजलुर रहमान और मरकज के दरमियान देखी है। देखिए, सियासत का हुस्न है इस तरह की महाजराई, दो तरफ का नुक्ता नजर। पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी हुकूमत सिंध में कर रही है और वो कोशिश करती है ये साबित करने की कि वो बेहतर हुकूमत कर रही है कोरोना के मामले में। तहरीक इंसाफ को भी ये साबित करना है कि वो बेहतर हुकूमत कर रहे हैं। तो बेहतर की इस कोशिश में दोनों के दरमियान महाजराई जमहूरियत का हुस्न है और हमें इसे मनफी तौर पे नहीं लेना चाहिए। और इसलिए मेरे नहीं ख्याल में ये महाजराई को सूबे की हुकूमत कहने का, क्योंकि आईनी तौर पर तहरीक इंसाफ सिंध की हुकूमत नहीं ले सकती। उनके अरकान की तादाद कम है। पीपल्स पार्टी के पास तो वहाँ 2/3 अक्सरियत है। इतने ज्यादा अरकान को तोड़ना सिंध के अंदर तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन नजर नहीं आ रहा। GDI भी बहुत छोटी है, MKM भी बहुत छोटी है उनके मुकाबले में। पीपल्स पार्टी तने तनहा बहुत बड़ी जमात है सिंध की, लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि वो कोई पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सिंध में कोई खतरा है। अगर फर्ज कर ले मुराद अली शाह गिरफ्तार भी हो जाए नैब से, तो नया वजीर आला पीपल्स पार्टी का आ जाएगा। वैसे तो वो जेल से भी वजीर आला होंगे जो आइन कहता है। इसलिए मेरे नहीं ख्याल में इस महाजराई के नतीजे में पीपल्स पार्टी के सिंध के इक़्तिदार को कोई खतरा है। जी मुजम्मल साहब, आपने कोरोना वायरस का भी आपने जिक्र किया। कोरोना वायरस के हवाले से जो पेशेंट्स की तादाद थी वो सबसे ज़्यादा पहले सिंध में आई थी, तो सिंध ने इस हवाले से बड़े इकदाम किए। लेकिन यहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी जो था कि जब लॉकडाउन की बात हुई तो सबसे पहले सूबा सिंध में लॉकडाउन किया गया, मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया गया। लेकिन जबकि पाकिस्तान तहरीक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना था कि जो स्मार्ट लॉकडाउन करने के लिए जा रहे हैं, तो इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए मेरी बात सुने, सिंध में टेस्टिंग जो है वो पंजाब और KP की निस्बत बहुत ज्यादा है। कोरोना के मरीज तो वहीं ज्यादा होंगे जहाँ टेस्टिंग ज्यादा है। आप आज टेस्टिंग कम कर दें, जी कोरोना के मरीजों की तादाद कम हो जाएगी। कोरोना होगा लेकिन मरीजों की तादाद कम हो जाएगी क्योंकि टेस्टिंग कम है। इस वक्त भी पाकिस्तान की कैपेसिटी तो 30,000 से ज्यादा टेस्टिंग में की है, लेकिन हम कर 20-22 हजार रहे हैं और उनमें भी सिंध की टेस्टिंग की तादाद ज्यादा है। मैं समझता हूँ सिंध ने कोरोना को डिफरेंटली हैंडल किया है PTI की निस्बत। और जो स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन में कोई फर्क नहीं है। स्मार्ट लॉकडाउन भी और लॉकडाउन यही है, जहां कोरोना है वहां लॉकडाउन करें। अब आप उसका कुछ भी नाम दे लें। अगर लाहौर के एक इलाके में कोरोना है, आपने उस इलाके को लॉकडाउन कर दिया, तो आप उसको स्मार्ट लॉकडाउन कह लें या दूसरा लॉकडाउन कहें। जी तो मेरे ख्याल में लॉकडाउन ही कोरोना का इलाज है। कान इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें, कान तो पकड़ना ही पड़ना है ना। जी बिल्कुल। अच्छा मुजम्मल सोहरावर्दी साहब, यहाँ पर बताए गए सारे मामले में जब हम ओवरऑल बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को आप कहाँ देखते हैं, उनके किरदार को आप कैसे डिफाइन करते हैं?
ठीक है जी, ऑपोजिशन में आएगा, सारों ने जेलें काटी हैं, अब जेलें काट के मेरा मतलब है आप उन्हें दोबारा जेल भेजना चाहते हैं। 16 महीने साद रफीक ने जेल काटी है, शाहिद खकान अब्बासी अंदर रहा है, राना सनाउल्लाह हीरोइन में अंदर चले गए, एहसन इकबाल चले गए, मेरा मतलब है शहबाज शरीफ चले गए, हमजा शहबाज चले गए, मरियम चली गई, नवाज शरीफ चले गए, मेरा मतलब है किसने जेल वहां नहीं काटी है। और मुस्ता इस्माइल पकड़े गए, तो सबने पकड़े गए हैं, तो अब पकड़े जाने के बाद जब रिहा होके आए हैं तो अब आपको 2 महीने उन्हें आराम से भी नहीं बैठने देते हैं। आपका ख्याल है दोबारा अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? अच्छा मुजम्मल सोहरावर्दी साहब, यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा माशाल्लाह आप जिस तरीके से सियासी मामलात हैं, पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं, तमाम तर बड़ी वसी नज़र रखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ, उज़ैर बलोच की जो GIT रिपोर्ट को पब्लिक किया गया था, उसके बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़ीर अली जैदी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी इस GIT पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। जो GIT रिपोर्ट है उसको आप कैसे आप देखते हैं? पता नहीं कौन सी GIT की आप बात कर रहे हैं, GITs हैं इसमें, और कोई अपनी GIT को सही कहता है, कोई अपनी GIT को सही कहता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उज़ैर बलोच को मिलिट्री कोर्ट ने दी और रियासत के इदारों ने उससे तफ्तीश की और वो रियासत की तहवील में था, वो किसी सियासी जमात या किसी हुकूमत की तहवील में नहीं था। और उसको मेरा मतलब मिलिट्री कोर्ट से सजा हुई है। मामले में अगर कोई भी मुलव्वस होता मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में तो रियासत उसे माफ ना करती। बाकी जहाँ तक कराची के सियासी हालात का ताल्लुक है, वहाँ MKM की भत्ताखोरी का ताल्लुक है, लियारी गैंग वॉर का ताल्लुक है, तो वो तो सब अपनी जगह एक हकीकत है और अमल और रद्द अमल की सियासत थी। वहाँ उसको उस तनाजुर में देखा जा सकता है, उसको रियासत मुखालिफ तो नहीं देखा जा सकता। जी बिल्कुल। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये जो एक सियासी स्टंट है, जो उज़ैर बलोच है उसे मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी थी और उसके साथ जो लोग रियासत दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस थे वो उसके साथ गए हैं, बाकी रियासत दुश्मन में नहीं। अच्छा मुजम्मल सोहरावर्दी साहब, अब आते हैं हम सूबा पंजाब की तरफ आते हैं। सूबा पंजाब पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा है, तो पंजाब की आबादी तकरीबन 12 करोड़ से ज़्यादा है और जिसकी पंजाब में जो हुकूमत बनाता है वो मरकज़ में भी हुकूमत बनाता है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर बहुत से सवालात जब से ये बने हैं उठते आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या कोई ऐसा होने जा रहा है कि खादिम आला जो पंजाब है, वज़ीर आला पंजाब, उसको तब्दील किया जा रहा है? इस तरह की बात गई सुनाई दे रही है हलकों में। मैं तो नहीं समझता कि वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली मुमकिन है। उस्मान बुज़दार की तब्दीली मुमकिन नहीं है। वो और इमरान खान इकट्ठे ही जाएंगे, अकेले उस्मान बुज़दार भी नहीं जा सकते, अकेले इमरान खान भी नहीं जा सकते। लिहाजा फिलहाल जब तक इमरान खान की कुर्सी कायम है, जब तक इमरान खान वजीर आज़म, उस्मान बुज़दार वजीर आला है। वो तहरीक इंसाफ के मौजूदा असेंबलियों के आखिरी वजीर आला होंगे। तहरीक इंसाफ अपना दूसरा वजीर आला नहीं ला सकती। वोटों की तादाद ऐसी है कि इसके बाद चौधरी परवेज को वजीर आला बनने का मौका मिल जाएगा, जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान को बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार को तब्दील करने का रिस्क ले ही नहीं सकती PTI। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो जाता है, आपके वाकई आप तो वसी नज़र रखते हैं, आपने जिक्र किया ऐसा चांस, अगर फॉर एग्जांपल बात है कि अगर ऐसा हो जाता है तो वजीर आला उस्मान बुज़दार के बाद आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे वजीर हैं, कौन सी ऐसे रहनुमा पाकिस्तान तरीके जी फिर परवेज इलाही आएंगे। अगर मौजूदा असेंबलियों में तब्दीली हुई तो फिर परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला होंगे। फिर तहरीक इंसाफ का वजीर आला नहीं आ सकता। कोई वजीर अलीम खान, असलम इकबाल, जितने नाम लिए जा रहे हैं इनका नहीं होगा। फिर परवेज इलाही की बारी आ जाएगी। नून लीग भी परवेज इलाही को सपोर्ट कर देगी और PTI के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगा परवेज इलाही को सपोर्ट करने के अलावा। तहरीक इंसाफ के हाथ से पंजाब का इक़्तिदार चला जाएगा। अच्छा मुजम्मल सोहरावर्दी साहब, अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। देखें मुल्क जिस तरीके से बुरी तरह मुतासिर हुआ है, पूरी दुनिया बल्कि कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हुई है। अगर हम कारकर्दगी का जायज़ा लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो मरकज़ में हुकूमत है, कि ओवरऑल कोरोना वायरस के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन किया गया, इस हवाले से मुख्तलिफ इकदाम किए गए। आप कोरोना वायरस के अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी को किस तनाजुर में आप देखते हैं? देखिए, बात यह है कि कारकर्दगी अभी चल रही है, अभी को कोरोना खत्म तो नहीं हो गया। हम उसके फाइनल वर्डिक्ट तो अभी नहीं दे सकते कि कारकर्दगी कैसी रही है। और इम्तिहान के तो जब इम्तिहानात खत्म हो जाएं, फिर पेपर चेक हो जाएं, फिर ही नतीजा आता है ना। तो अभी तो कोरोना चल रहा है, पता नहीं बड़ी तो क्या होगा, हमारे टेस्टिंग कम है, असल में कितना है, डेथ रेट क्या निकल आया है, और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, हुकूमत कहाँ खड़ी है,
लिहाजा मैं समझता हूँ कि एक दफा जब कोरोना खत्म होगा और जिंदगी नॉर्मल आएगी, उसी वक्त कारकर्दगी का जायजा लिया जा सकता है ना। अभी तो दावे ही हैं, वो कहते हैं हमने बड़ा कामयाबी कर ली, हमने बड़ी कामयाबी कर ली, लेकिन अभी तो जंग जारी है। जंग के दरमियान में किसी वक्त भी पांचा पलट सकता है, लिहाजा अभी तो कोई मैं फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे सकता। अच्छा मुजम्मिल सुहरवर्दी साहब, लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, कारोबार जिंदगी मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो चुका है, यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि क्या क्या इकदाम फौरी नोयत के हैं जो होने चाहिए गवर्नमेंट की जानिब से? अभी तो देखिए हुकूमत के पास कोई विजन नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, कारोबार का पहिया चल सके। लिहाजा मैं नहीं समझता कि बेरोजगारी तो कोरोना से पहले भी मौजूद थी, ग्रोथ रेट पहले भी नेगेटिव जा रहा था। पिछले साल जब कोरोना नहीं था तब भी लोग बेरोजगार हुए हैं और पाकिस्तान में रिकॉर्ड बेरोजगारी हुई। लिहाजा हम ये तो नहीं कह सकते कि कोरोना आया है तो बेरोजगारी आई है। बेरोजगारी तो आ गई तहरीक इंसाफ के पहले साल में ही, और जीडीपी भी नीचे चला गया, और उसके साथ साथ मेरा मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर चली गई। तो लिहाजा इसको सिर्फ कोरोना में तो नहीं देखा जा सकता, ये तो पीटीआई की ओवरऑल पॉलिसीज के तनाजुर में देखा जाएगा। और अब मुझे नहीं लगता पीटीआई के पास कोई ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत वो इस अनएम्प्लॉयमेंट को और जो कारोबारी जमूद है, जो स्टेटस को है पाकिस्तान में बिजनेस का, कि लोगों ने कारोबार करना बंद कर दिया और घरों में पैसा लेके बैठे हैं, इसका कोई हल तहरीक इंसाफ के पास नजर नहीं आता। अच्छा मुजम्मिल सुहरवर्दी साहब, अगर यही हालात रहे तो फिर 3 माह या 4 माह के बाद मुल्क में क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है? कोई बात नहीं, जमहूरियत बुरी हुकूमतें भी आती हैं और अच्छी हुकूमतें भी आती हैं। मेरा ख्याल है कि वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए, और अगर बुरी हुकूमत भी अपना टेन्योर पूरा कर ले तो लोग वोट से उसको आउट करेंगे और वो अगली दफा दोबारा नहीं आ सकेगी। हमारे यहाँ जो ये है ना कि जी दरमियान में ही हुकूमत बदल दी जाए, मैं ज़ाती तौर पर इसको ठीक नहीं समझता, पाकिस्तान के लिए भी और जमहूरियत के लिए भी। हुकूमत अच्छी है या बुरी है, उसे अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए, और अगर वो बुरी हुकूमत है तो लोग जमानतें जब्त करा देंगे, डब्बे खाली निकल आएंगे उनके, ऐसी कौन सी बात है। जी हाँ मुजम्मिल सुहरवर्दी साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आपकी सजेशंस, आपकी तजावीज़ बड़ी काबिल एहतराम है, आप हुकूमत को क्या तजावीज़ पेश करते हैं मौजूदा हालात के पेश नज़र? काम करे जी, गालिम गलूच बंद करे, ऑपोजिशन को तंग करना बंद करे, अपने काम पर तवज्जो दे, क्योंकि बिलाखिर तो मेरा मतलब है कि काम ही उनको बचाएगा। ये ऑपोजिशन को, सारी ऑपोजिशन को भी अंदर करते हैं और कोई काम ना करें, फिर भी लोग उनका कुछ नहीं करते, और अगर सारी ऑपोजिशन बाहर वो काम कर रहे हो तो लोग खुश होंगे। उन्हें ये देखना है कि अगर उन्होंने लोगों का दिल जीतना है तो काम करना पड़ेगा, ये ऑपोजिशन को अंदर करने से, गालिम गलूच से लोगों का पेट नहीं भरेगा। जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल सुहरवर्दी साहब, आपके कीमती वक्त का। ये थे मुजम्मिल सुहरवर्दी हमारे साथ, तो बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई, हमने पूरे पाकिस्तान के तमाम तर पहलू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी का जायज़ा जो लिया है, बड़ी खूबसूरती से इन्होंने बयान किया है। तो यहाँ पर नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू का इसी तरह सिलसिला जारी रखेगा, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ मैं हूं ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी महाज आराई पर। सियासी जमातों का तो ये जो बरसर इक़्तिदार पार्टी होती है, जो अपोजिशन में पार्टीज होती है, उनके दरमियान तो महाज आराई जारी रहती है, लेकिन 2 साल का अरसा तकरीबन अब मुकम्मल होने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार पार्टी है, लेकिन ताहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध में बरसर इक़्तिदार पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान महाज आराई अपने अरूज पर रहती है। आए रोज़ कोई वफाकी वज़ीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लफ्जी गोलाबारी करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी भरपूर जवाब दिया जाता है। इस वक्त में ज्वाइन किया शेख मकबूल रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया शेख मकबूल साहब, आपने हमें टाइम दिया। तो बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी महाज आराई पर। तो आप ये जो महाज आराई है इसको किस तनाजुर में देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आपने मुझे जी शेख साहब
جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, نہ ہماری ان کے ساتھ کوئی محاذرائی ہے, اس لیے کہ ہم تو جمہوریت کے وارث ہیں, ہم شہداء کے وارث ہیں, ہم نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے, اس قوم کے لیے. ایٹم بم بنانے سے لے کے جمہوریت کو بچانے کے خاطر واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے جانوں کا نذرانہ دیا ہے, قربانیاں دی ہیں. ہمارا اور ان کا مقابلہ کیا ہے؟ اگر آج بھی آپ دیکھیں تو سندھ کے حالات باقی صوبوں کی مانت بہت اچھے ہیں. سب سے زیادہ جو کورونا کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے وہ سندھ میں ہوئی ہے. سب سے زیادہ سندھ کے ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ سہولتیں موجود ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت وہاں پہ اتنی ہے تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کے پی کے میں ان کی حکومت کو 7 سال ہو چکے ہیں, 5 سال پہلے اور 2 سال یہ. کے پی کے حالات کو دیکھ لیں اور سندھ کے صوبے کے حالات کو دیکھ لیں, آپ کو وہاں پہ تعلیم, صحت, ہر چیز کا نظام بہتر نظر آئے گا بنسبت دیگر صوبوں کی. اور یہی چیز پی ٹی آئی کو ہضم نہیں ہو رہی, یہی چیز ہے جو بار بار انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے, کبھی فیصل واڈا, کبھی علی زیدی, کبھی کسی کی طرف سے یہ غلط قسم کے بیانات دعا کر, اور ایک اور ہمارے اوپر یہ انہوں نے چینا کا گڈا چھوڑ دی ہے. مراد سعید جو ہے وہ اس طرح کی گھٹیا قسم کی گفتگو کرتا ہے. اس کا اور بلاول کا کیا, جو جس کی ماں نے شہادت دی ہو, اس کے باپ, اس کے خاندان نے کسی شخص نے شہادت دی ہے جمہوریت کے لیے, اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے, اور یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ مناظرہ کرو. اس کے لیے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ادنا ورکر ہی کافی ہے. لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم جمہوریت کے محافظ ہیں, ہم جمہوریت کو چلانا چاہتے ہیں, ہم اس ملک اور قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں یہ بھی دیگر صوبوں کی 3 صوبوں کی طرح. آج پنجاب کا دیکھ لیں انہوں نے حال کیا کر دیا ہے. ان کی اپنی جماعت کے بندے سپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. آپ آن کیمرہ کسی بھی صوبے میں چلے جائیں, کسی شہر میں چلے جائیں, کہیں چلے جائیں, اگر کوئی آپ کو مطمئن نظر آئے تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ دیں گے. شیخ صاحب, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی وہ ڈائریکٹ انہوں نے کہا جا صوبہ سندھ کی حکومت نے جس طریقے سے ملک کرونا وبا سے دوچار ہے, یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی جو برسر اقتدار حکومت ہے صوبہ سندھ میں, انہوں نے وہ ٹیسٹنگ ہو ہی نہیں رہی کرونا ٹیسٹ کی جو ہونی چاہیے, ان کی تعداد بہت کم بتا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب خود. دیکھیں میری بات سنیں, یہ آن گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ سب سے زیادہ اگر ٹیسٹنگ ہوئی تو وہ سندھ میں ہوئی. اگر پنجاب کا آج گراف کرونا کے پیشنٹ کا سندھ سے تھوڑا سا پیچھے ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ ہی نہیں کیے, انہوں نے ٹیسٹ کرنے کی زحمت ہی نہیں کی. انہوں نے آج بھی آپ لاہور کے کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا وہاں پہ ایک بیڈ پہ 3 4 پیشنٹ. آپ اس کی بات کرتے ہیں, ہمیں تو کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ پورے لاہور میں, کیونکہ میں لاہور میں رہتا ہوں, لاہور کی بات کروں گا کہ لاہور میں لوگوں نے ایک دن کا 50 سے 1 لاکھ روپیہ رسیو کیا ہے اور سٹل ابھی کر رہے ہیں. یہ میرے پاس میرے حلقے میں غازی روڈ میں ایک کیئر ہاسپٹل ہے, وہاں پہ میجر ایوب اس کے مالک ہے, پوچھے ابھی آپ کا اپنی ٹیم کو بھیجیں, وہاں پہ ایک پیشنٹ سے 1 لاکھ روپیہ ڈیلی کا لے رہے ہیں کورونا کا. یہ انتظام ہے ان کے. ایک غریب آدمی کو اگر کورونا ہوتا ہے تو وہ 1 لاکھ روپیہ روز کا کہاں سے دے گا؟ اگر جو نہیں دے سکتا اس کو سرکاری ہاسپٹل میں بھیجتے ہیں, رسیوں کے ساتھ, زنجیروں کے ساتھ باندھا جاتا ہے. یہ ان کی کارکردگی ہے. ہمارے ساتھ ان کا کیا مقابلہ؟ یہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. کہنا اور عمل کرنا 2 الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں میرے بھائی. شیخ صاحب, شیخ مقبول صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں اور لاہور سے آپ نے الیکشن بھی لڑا ہے, آپ مستقبل میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے کیا موقف آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہوگا؟ دیکھیں میری بات سنیں, جب سے پاکستان معاذر وجود میں آیا ہے جمہوریت کے دشمن لوگ رہے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو کا ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ نام لینا پسند نہیں کرتا. کچھ ایسی قوتیں تھی جنہوں نے اس کو بالکل دفن کر دیا تھا. لیکن جمہوریت ایک ایسا حسن ہے جو نکھرتا ہے. جیسے جیسے کوئی کسی چیز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے, نیوٹن کے قانون کے مطابق اسی ویلوسٹی کے ساتھ وہ ابھرتی ہے.
जितना ये जमहूरियत को दबाएंगे, जितना ये जमहूरियत को तबाह करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी जोरों शोर से ऊपर आएगी और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि एक दिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा पाकिस्तान किला होगा। लेकिन शेख मकबूल साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध पर तो बरसर इक़्तिदार है, लेकिन पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतहाई कम नशिस्तें सूबाई असम्बली में, तो क्या इससे ये नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी में बहुत कमी आ गई है? देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि 35 साल हमने वहां पे नवाज शरीफ का मुकाबला किया है, शहबाज शरीफ का। 35 साल पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं रही। 35 ईयर्स, जब 35 साल किसी के साथ जुल्म किया, ये उसी दौर के ये केस है ना जरदारी साहब के ऊपर। उसी दौर में जरदारी साहब को मीडिया पे आके, टीवी पे आके इन्होंने एक बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। इन्होंने हमारे लिए किया, इनके लिए भी हो गया। तो जिस जमात के साथ 35 साल जुल्म और सितम एक सूबे में हो, तो हम तो खुश हैं, परवरदिगार का शुक्र बजा लाते हैं कि आज भी लाहौर में, पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लेने वाले हैं। जिन लोगों को 35 साल मार पड़ी हो, वहां पे भी अगर लोग मौजूद हो तो हम तो इसको अपनी कामयाबी समझते हैं। शेख साहब, बात है कि पंजाब की हुकूमत की बात की जाए या पूरे अगर पाकिस्तान की हुकूमत की बात की जाए, तो इसमें आपको ये नहीं लगता, जिस तरह भी आपने जिक्र किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का कि 35 साल हुकूमत की है, तो ये भी तो हो सकता है जब तक पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अगर एक पेज पर नहीं आते तो इस हुकूमत के खिलाफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का किरदार अदा नहीं किया जा सकता? देखिए, हम तो जमहूरियत पसंद लोग हैं। हम तो कहते हैं कि इस मुल्क और कौम के लिए जो भी अच्छी चीज होगी, हालांकि अगर गौर से देखें तो ये वही चेहरे हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जुल्म किया, सितम किया, उसको खत्म करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इस मुल्क और कौम के लिए, इस अवाम के लिए जो भी अच्छा फैसला होगा उसके लिए हम किसी के साथ अलायंस करने के लिए भी तैयार हैं। इस मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं। नहीं, अलायंस का तो आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलायंस बिल्कुल जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए अलायंस कर सकती है, लेकिन अब आप देखें पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो बरसरे इक़्तिदार इस वक्त हुकूमत है, अगर उसकी पैदावार की, अगर प्रोडक्शन की अगर बात की जाए, वही चेहरे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, जो मिनिस्ट्रीज़ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में थी जब वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, तो वही मिनिस्ट्रीज़ सेम एज इट इज़ इस हुकूमत में है। देखिए, मेरी बात सुने, यही तो चीज है कि अगर ये काबिल होते तो असद उमर साहब इक़्तिदार में आने से पहले ये नारे लगाया करते थे कि मेरे पास मुआशी इस तरह का हल है पाकिस्तान की मशरियत का कि मैं यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बना दूंगा। तो कहाँ गया वो शहद और दूध की नहरें? ये इनकी पॉलिसीज ठीक नहीं। ये नाअहल लोग हैं, इनको हमारी जरूरत थी, हमारी टीम की जरूरत थी, क्योंकि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आई है, हालात ऐसे भी आपको पता होगा 2008 में ऐसा वक्त था जब तालिबान स्वात में आके बैठे हुए थे, आधा पाकिस्तान आपके हाथ से जा चुका था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी अच्छी हिकमत अमली की, अपनी सूझ, अपनी बूझ, अपनी अकल की वजह से इस सारे मामले को सॉल्व किया। गंदम का बुरहान था, उसको खत्म किया। हर आदमी खुश था, लोगों की तनख्वाहों में, पेंशनों में इजाफा किया। लेकिन ये लोग हुकूमत चला नहीं सकते। एक आदमी जो है वो उसका काम खैरात मांगना है, उसका काम खैराती हॉस्पिटल बनाना है। अगर आप उसको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तो काम तो खराब होगा। अगर आप एक ड्राइवर को आप कहें कि घास काटना शुरू कर दो, तो वो तो नहीं कहते, घास तो माली ने काटनी है ना, ड्राइवर ने तो गाड़ी चलानी है ना। आपने गलत चॉइस करने वालों ने गलत चॉइस कर लिया है कि मैं अब क्या कहूं कि ये इस काबिल नहीं है कि हुकूमत चला सके। जी शेख साहब, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वही चेहरे जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में मौजूद हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर इन्हीं चेहरों की बात की जाए, इन्हीं को ही अपनी जो है आला क़यादत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनसे गिले शिकवे थे और हैं, मेरे ख्याल से कुछ भी मौजूद होंगे, उनमें गिले शिकवे तो होंगे। तो यही गिले शिकवे इस चीज़ की बुनियाद बनते हैं जिसकी वजह से बंदा मजबूर हो जाता है कि वो दूसरी पार्टी को तब्दील करने में। तो ज़ाहिर बात है गिले शिकवे ही ये वजह बनी है जिसकी वजह से पार्टी को उन्होंने छोड़ा है। तो उनका ये भी इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खजाना खाली कर दिया।
देखिए मेरी बात सुने, ये जो गिले शिकवे होते हैं ये जमहूरियत का हुस्न होता है, लेकिन कुछ लोग हमेशा फसली बटेरे होते हैं जिन्होंने इक्तदार में रहना होता है, तो वो उनको ये क़यादत के साथ जो है नाराजगी और क़यादत के साथ गिले शिकवे वो तो बहाने बना लेते हैं। यहाँ भी आप देखें, अगर ऐसा ही हालात रहे तो मैं राजे रियाज की आपको मिसाल दे देता हूँ। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, वो तरीके इंसाफ में गए, आज तरीके इंसाफ में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट आ रही है, तो कुछ फसली बटेरे होते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो रही बात खजाना खाली करने की, तो जब भी कोई आता है ये भी तो यही राग रहे हैं ना कि नवाज शरीफ ने खजाना खाली कर दिया, ये फितरती अमल है। ये लोग कहते हैं कि पिछली हुकूमत ने खजाना खाली कर दिया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शेख मकबूल साहब, आपने टाइम दिया। तो शेख मकबूल साहब से बात चल रही थी, इन्होंने जिक्र किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वही चेहरे जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में हैं, और उनका कहना यह था कि ये वही फसली बटेरे होते हैं जिनको सिर्फ इक़्तिदार का नशा होता है। लेकिन अलमिया तो यही है कि वही चेहरे हैं कि जो आज से मरूसी सियासत करते आ रहे हैं, जिनको 20 साल से 30 साल से वही चेहरे आते हैं, लेकिन हुकूमतें बदलती हैं लेकिन चेहरे नहीं बदलते। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ मैं हूं ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी महाज आराई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरसरे इक़्तिदार में 2 साल का अरसा मुकम्मल होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान महाज आराई कम नहीं हुई। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान हुकूमत पंजाब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर को सूबाई असम्बली पंजाब सादिया सुहेल राना साहिबा ने। बहुत शुक्रिया मैडम आपके कीमती वक्त का। तो बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी महाज आराई पर। तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी महाज आराई को किस तनाजुर में देखती हैं आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इन्वाइट करने का। एक तो मैं समझती हूँ कि ये महाज आराई बहुत हद तक यकतरफा नजर आती है। पीपल्स पार्टी के साथ हमारा और तो इख्तलाफ नहीं, सवाए इसके कि जो सिंध में इस टाइम गवर्नेंस की सूरत हाल नजर आ रही है, जो इस तरह से मसाइल हैं, और आप गंदगी सिंध की गंदगी से लेकर आप तमाम मसाइल की तरफ नजर दौड़ाइए तो आपको पता चलेगा कि इतने साल मुसलसल हुकूमत में रहने के बावजूद जो है पीपल्स पार्टी वहां परफॉर्म करने में, लोगों को फैसिलिटेट करने में टोटली नाकाम रही है। तो हमारा कोई जंग, कोई लड़ाई नहीं है। हमारा तो मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपके पास उतनी गवर्नमेंट इतने अच्छे से है और आप गवर्नमेंट चला रहे हैं सिंध की, तो वहाँ के लोगों के मसाइल हल करना भी उनकी जिम्मेदारी है। और बीइंग गवर्नमेंट हम फेडरल में भी हैं और हमें ओवरसाइट करना पड़ता है तमाम सूबों को, उनकी कारकर्दगी और उनके मसाइल के हवाले से। तो मेरे ख्याल में हमारी तरफ से तो जंग नहीं है, लेकिन जो कल बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं उसके लिए जरूर कमेंट करना चाहूंगी। बीइंग बेनजीर भुट्टो जैसी पढ़ी लिखी और बेहतरीन लीडर, और भुट्टो साहब के नवासे की हैसियत से उनको ये शोभा नहीं देता था। जिस किस्म की गुफ्तगू और जिस किस्म का एटीट्यूड उन्होंने अपनाया वो बहुत ही काबिले मजम्मत है, और इस किस्म की सियासत से बेहतरी नहीं होती, मसाइल मजीद बढ़ते हैं। आप आवाम के लिए बात करें। आप इमरान खान साहब ने करप्शन में जो आपके माशाल्लाह पूरे खानदान ने करप्शन के अंबार लगाए हुए हैं, उनकी तरफ तवज्जो दें। इसलिए इस वक्त दुनिया और मुल्क हमारा बदतरीन पेंडेमिक की तरफ को फेस कर रहा है। अच्छा मैडम, और हम मैडम ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल का अरसा मुकम्मल होने वाला है,
تو پاکستان تحریک انصاف کی ناکامیاں بھی تو سامنے آ رہی ہیں. جس طرح پاکستان تحریک انصاف جب برسر اقتدار حکومت پر آئی, پہلے 100 دن کا پلان دیا, اس کے بعد 11 نکاتی ایجنڈا پیش کیا, لیکن اس پر بھی کوئی بھی خاطر خواہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی ناکامی نہیں ہے کیا؟ میں تو بالکل اس چیز سے آپ کے اس بات سے ایگری نہیں کرتی, لیکن ہاں ایسے ہے کہ دیکھیں اس ٹائم جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو مسائل فیس کر رہی ہے, ان دونوں پچھلی پارٹیاں جو حکومت میں رہی, کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ انہوں نے ایسے حالات دیکھے ہوں گے, کیونکہ دنیا میں یہ پینڈیمک بھی پہلی بار آیا ہے, اور ملک کو جس بری صورتحال میں, پھر آپ یہ کہیں گے کہ آپ لوگ پیچھے کی بات کرتے ہیں, میں اس کے لیے دیکھیں 2 سال میں پی ٹی آئی نے آ کے ایسا ملک کو کون سا لوٹا یا جھنجھوڑا ہے کہ ملک کے حالات برے ہو گئے. یہ وہ تھے جو قرضے لے کے واپس نہ کیے گئے, اقساط ادا نہیں کی اس کی. آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ آج آپ دیکھیں پوری دنیا مان رہی ہے کہ عمران خان ایک انٹرنیشنل لیڈر کے طور پہ منظر عام پہ آئے ہیں. بس آپ کی جو خارجہ پالیسیز ہیں, اس سے بہترین امیج پاکستان کا کبھی تھا ہی نہیں. اور آج ہر مسائل پاکستان کا میں سمجھتی ہوں, آپ کہہ سکتے ہیں شاید آپ کو اختیار ہے, ہر ایک کی رائے ہوتی ہے, میں سمجھتی ہوں یہ بہت کامیابی کے سال ہے. مسائل جتنے بڑے بڑے ساتھ ہیں, ہم نے انتہائی کم وسائل کے ہوتے ہوئے اس پینڈیمک کو جیسے فیس کیا. آج انڈیا جس کی سب واہ واہ کر رہے تھے لاک ڈاؤن کی پالیسی پر, اور یہ آج وہ بھوک کی طرف جا رہا ہے, غذائی قلت کا شکار ہو رہا ہے. آج پاکستان اس خطرناک لسٹ سے باہر ہے. وہ عمران خان صاحب کا ویژن تھا, وہ عمران خان صاحب کی پالیسی تھی جو انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ بیماری سے تو کم, غربت سے زیادہ لوگ اپنی جانوں سے جا سکتے ہیں. تو انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف اقدامات اٹھائے, اس ملک کی خارجہ پالیسی کو امپروو کیا, اس معیشت کو سنبھالنے کے لیے بہت سارے اداروں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں آج مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان بیٹھا ہے, نواز شریف بیٹھا ہے, زرداری بیٹھا ہے. لوگوں کی دنیا میں آپ دیکھیے جو اچھے ممالک, جو اچھا مطلب اسم ترقی یافتہ جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں, یہ مہذب ممالک, اس میں کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا, سسٹم رن کرتا ہے. ہمارے یہاں مزہ پرابلم یہ ہے, اگر زرداری صاحب گئے تو پورا سسٹم کولیپس ہو جائے گا, کیونکہ انہوں. اچھا میڈم, یہاں پر آپ یہ بتائیے گا, آپ سے میرا سوال ہے, کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت پنجاب کو یا حکومت پاکستان کو اس سے پہلے آلریڈی یہ کنفرمیشن تھی کہ ایسی وبا پھیلے گی پوری دنیا میں, پاکستان میں پھیلے گی, اس کے خدشات تھے. لیکن جب کووڈ-19 جب سٹارٹ ہوا سپٹمبر اکتوبر میں, اس کے بعد فیبری میں, اس بات کا کبھی امکان تھا کہ بری طرح پاکستان متاثر ہو سکتا ہے. لیکن حکومت پنجاب ہو یا حکومت پاکستان ہو, اس حوالے سے کوئی بھی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے, لیکن وہ ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے گئے. اگر وقت سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ پراپرلی اس پر میکنزم تیار کر لیتی, اس حوالے سے اقدامات کر لیتی, جو صورتحال جو 2 ماہ کے بعد 3 ماہ کے بعد پیدا ہوئی ہے, کرونا وائرس کے پیشنٹس میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا, اور پاکستان جو ہے کہ وہ ٹاپ کی لسٹ میں آ گیا ہے جو کرونا وائرس کے مریضوں کی وجہ سے زیادہ متاثر ہوا تھا. اچھا, میں ایک تو آپ کو بتا دوں کہ پاکستان اس ٹائم, اس جب پیک ٹائم تھا تب بھی 13ویں نمبر پہ تھا, اور 15ویں سے 13ویں پہ آیا, اور 10 جو ٹاپ لسٹ ہے اس میں ہم کبھی بھی نہیں آئے. دوسرا یہ کہ پینڈیمک ہے جس کے لیے تو کوئی بھی مینٹلی تیار نہیں تھا. ہاں, جب چائنا میں سٹارٹ ہوا تو ہمارا پہلا فوری قدم کیا ہوا, ہم نے تمام انسٹیٹیوٹ بند کر دیے, بچوں کے اسکول بند کر دیے, تمام پبلک پلیسز کو اسی ٹائم فوری اقدام. اچھا, جو چیز ہم نے پہلے دیکھی ہی نہیں, اب ہم یہ دیکھ لیں. چلے پاکستان میں تو آپ یہ کہہ لیں کہ شاید ہم نے کوئی کمی بیشی چھوڑی. مثال لے لیجئے, دنیا کی ورلڈ کی بہترین ممالک کا جو وسائل کے حساب سے بھی جن کا ہیلتھ سسٹم دنیا میں مانا جاتا ہے, وہ امریکہ ہو, اٹلی ہو, برطانیہ ہو, وہاں کی آپ نے کولیپس ہوتے دیکھے ہیں. الحمدللہ پاکستان پرائم منسٹر کے ویژن کی وجہ سے جو انہوں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا, بہت بڑے نقصان سے بچ گیا ہے. آج انڈیا وہ فیس کرائی پورے یورپ میں, اور یہ تو قابل تحسین عمل ہے. خدا را دیکھیے انٹرنیشنل آرگنائزیشن آج اس چیز کو ایڈمٹ کرنے پر تیار ہے. دنیا کے ممالک مثال دے رہے ہیں پاکستان کی, اور ہم اتنے محدود وسائل. آپ کا ہیلتھ سسٹم کہاں تھا 70 سال میں؟ ہیلتھ سسٹم بنایا کس نے ہے؟ آج آپ وینٹیلیٹر خود بنا رہے ہیں. پہلے آپ کے پیشنٹ
वेंटिलेटर की वजह से मर जाते थे। आज आप हमने इस सिस्टम से लर्न किया है और साथ ही साथ जो उसकी शॉर्ट कमिंग थी उसको कवर करने के लिए आई थिंक हुकूमत ने अपने पूरे एफर्ट किए हैं, और उसमें मैं सलाम करती हूँ डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, मीडिया को, स्पेशली जो फ्रंट लाइन पे लड़े हैं हुकूमत के शाना बशाना। तो इससे हमें अपनी चीजों को, अपने मुल्क को, अपनी अचीवमेंट को प्राउडली बताना चाहिए। अल्लाह ना करे इस तरह का पेंडेमिक कभी दोबारा जिंदगी में किसी इस दुनिया में आए, लेकिन इसकी पूरी हिस्ट्री, एक अनसीन दुश्मन जो आपको कहां से अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा, उसके लिए जंग की तैयारी करना इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट जॉब। सादिया सुहेल राना, अभी आपने जिक्र किया जिस तरीके से कोरोना वायरस की वबा फैली तो वहाँ पर तालीमी इदारों को, स्कूलों को आपने बंद कर दिया स्मार्ट लॉकडाउन करते हुए, लेकिन इसके बाद महकमा तालीम ने ये किया कि जितने भी जो तालीमी निज़ाम मुतासिर हुआ उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया गया था, लेकिन ये ज़्यादती नहीं है। पंजाब की आबादी 12 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, लेकिन जो ज़्यादातर देहात पर मुश्तमिल है, जहाँ पर ये इंटरनेट की फैसिलिटी अगर अवेलेबल नहीं है तो वो अपनी दरस तदरीस को कैसे जारी रख सकते हैं? देखिए उसमें यही देखें, पहले यूनिवर्सिटी लेवल पे ये किया गया, यूनिवर्सिटी लेवल पे इसलिए किया गया कि आपके आज के स्टूडेंट के हर एक के पास मोबाइल है, एंड्रॉइड फोन है, उस वजह से। लेकिन स्कूल लेवल पे ये टेलीविजन पे ये टेली एजुकेशन का पहली बार इंट्रोड्यूस करवाई गई। वही मैं कहती हूँ ना, ये हालात क्योंकि देखे वाले नहीं थे और हमारे पास हमारे मुल्क में ऐसा अल्टरनेटिव कोई निजाम मौजूद नहीं है ऑनलाइन। हमारे कितने रूरल एरिया हैं जहाँ नेट अवेलेबल ही नहीं होता, नेट किसी में नहीं आते। ये हकीकत है, ये रियलिटी है। लेकिन इसमें जिस तरीके से हम कर सकते थे, लेकिन पर कुछ डिसीजन ऐसे लेने पड़े कि बजाय आपको ऑनलाइन अवेलेबिलिटी हर स्टूडेंट के लिए जहाँ नहीं थी, वहाँ उन क्लासेस को, छोटे क्लासेस को आगे खुद ब खुद प्रमोट बच्चों को कर दिया गया ताकि उनका साल जाया ना हो, ताकि उनकी पढ़ाई, जारी बात है ये एक ऐसे हालात है जिसमें इंसानी जिंदगी की इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है, उसके बाद बाकी बातें आती हैं। तो मौजूदा सिस्टम की मौजूदगी में जो बेहतरीन किया जा सकता था, मैं समझती हूँ वो गवर्नमेंट ने किया। लेकिन सादिया सुहेल राना साहब ये भी बताइएगा कि जिसका तालीमी निज़ाम तो बुरी तरह मुतासिर हुआ है, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी इदारे हैं जिनका रोज़गार इससे वाबस्ता था, दरस तदरीस से उनकी वाबस्तगी थी, लेकिन ये 4-5 माह के दरमियान जो जितने भी प्राइवेट इदारे थे उनको मुकम्मल तौर पर बंद हो गए हैं। लेकिन कुछ तालीमी इदारे ऐसे हैं कि जिन्होंने फ़ीसें तो ली हैं, लेकिन जो वहाँ पर अमला है, जो टीचर्स हैं, उनको तनख्वाहें नहीं दी गई। इस हवाले से महकमा तालीम को क्या सब, क्योंकि आप तो तर्जुमान भी हैं हुकूमत पंजाब की, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या क्या इकदाम किए हैं? देखिए इस हवाले से मिनिस्टर साहबान जो दोनों हायर एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन के हैं, दोनों मुसलसल प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ऑन बोर्ड रखा उनको, और उनसे इसी चीज पे फीसों के मामले में, बच्चों को जो स्टाफ की तनख्वाहों के मामले में बाकायदा उनको फोर्स भी करते रहे और तमाम चीजों पे अमल दरामद कराने की। लेकिन अब अलमिया हमारे यहाँ ये है कि सिर्फ हुकूमतें ही डंडे के जोर पे या पुलिस के थ्रू या जुर्माने या सजाएं करके कुछ चीजों पे अमल करवाने की पाबंद तो है, लेकिन मुझे बताइए कुछ अखलाकी नॉर्म्स भी होते हैं जिन इदारों ने बरसहा बरस से अरबों खरबों रुपए अपने इंस्टीट्यूट से कमाए हैं। आज अगर मुश्किल का वक्त आ गया है इस मुल्क पे, तो आप चंद महीने हुए हैं हमें इससे गुजरते हुए, 6-7 महीने का टाइम है, और इसमें आप अपने वो जमा शुदा पैसों में से अपने लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सकते। आप उनको नौकरियों से निकाल रहे हैं, आप उनको तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो मल्टी प्राइवेट ग्रुप्स है, जिस तरह के उनका बिहेवियर लगा है, तो हैसियत कौम भी तो हमारा तो किरदार है कि नहीं है। हम देखते हैं कि अमवाज ज्यादा होती है तो हम कफन महंगा कर देते हैं। और खुदारा ये सिर्फ जो आपकी महंगाई है, लोगों पेंडेमिक में दुनिया ने कौन बन के दिखाया है। लोग रास्ते में चीजें छूट जाते थे, खाने पीने की जरूरियात अशिया। वैसे से कौम तो हम लोग इस लिहाज से मैं समझती हूँ हमें बहुत इस्लाह की जरूरत है कि मुश्किल वक्त में सिर्फ हुकूमत ही नहीं होती। ये मुश्किल वक्त किसी पार्टी की वजह से नहीं आया, ये कोई किसी एक सियासी
सोच की पैदावार नहीं है, ये पूरी दुनिया से गुजर रही है। हमें पाकिस्तानियों को एक कौम की हैसियत से बिहेव करने की जरूरत है। सादिया सुलैना साहब, हमें सब कुछ दिया जी, है और अगर आज हमें इस मुल्क को लुटाने का वक्त आया है तो हमें लुटाना चाहिए। अच्छा, लुटाना चाहिए। यहाँ पर मेरा आपसे आखिरी सवाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, आप क्या समझती हैं, ये बात गश्त बड़ी देर से सुनाई दे रही है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को तब्दील करने की भी बात गश्त सब तरफ सुनाई दे रही है, इस बात में कितनी सदाकत है? और अपोजिशन की जाए, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे हैं वो भी इस पर कह रहे हैं कि हो सकता है कि वज़ीर आला पंजाब को तब्दील कर दिया जाए। तो मुजम्मल सोहेब वर्दी साहब से भी हमारी बात हो रही थी, सीनियर तज्ज़ियाकार, उनका कहना यह था कि फिलहाल ऐसा इसका कोई इम्कान नहीं है, लेकिन अगर मैंने उनसे बराबर करवाया कि अगर कोई ऐसा चांस हो जाता है कि सरदार उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए, तो उनका कहना था कि अगर वज़ीर आला पंजाब कोई आएगा तो वो चौधरी परवेज इलाही साहब ही होंगे। तो आप क्या कहेंगी? देखिए, इस तरह की बात गश्ते तो पिछले 2 साल से मैं मुसलसल सुन रही हूँ और ये सिर्फ बात गश्ते ही है और उसके अलावा कुछ नहीं है। पीएम साहब अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक उन्होंने इस पेंडेमिक में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, हम उनकी टीम है, हम उनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह अगले 3 साल भी वही आप सीएम देखेंगे और पंजाब तरक्की की राह पे गामजन है और तेजी से काम करेगा और इंशाल्लाह हम आवाम को मायूस नहीं करेंगे। और मैं अपनी आवाम से भी कहना चाहती हूँ, 5 साल बाद हमारी कारकर्दगी देखें और मैं ये बस सिर्फ शक्ति वोट देना बंद करें, जो और खंबे को वोट दे देना, गधे को वोट दे देना, ये काम छोड़ें, अपनी सोच और देखें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए लोग मुंतखब करें, ताकि एक टिपिकल सियासी निजाम जो है उसमें चंद चेहरे ही बार बार आते हैं वो तब्दील हो। आपके और हमारे जैसे लोग जो ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, लोगों के मसाइल से वाकिफ हैं, अच्छे लोगों को चुन के सामने लेके आए और इमरान खान जैसा लीडर, मैं एक बार फिर कहूंगी कि मुश्किल से मिलता है, दयानतदार, ईमानदार और इस वतन से मोहब्बत करने वाला, इसकी कदर करें। जी बहुत शुक्रिया सादिया सुहेल राना साहबा, आपने हमें कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी महाजराई पर तफसीली गुफ्तगू की। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया मुजम्मल सोहेब वर्दी साहब ने, इसके बाद हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शेख मकबूल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इसी तरह फिर हमें आखिर में हमें ज्वाइन किया सादिया सुहेल राना साहिबा ने, तर्जुमान हुकूमत पंजाब की। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान महाजराई पर तफसीली हमने गुफ्तगू की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहना था, बल्कि मुजम्मल सोहेब वर्दी साहब का ये कहना था कि ये एक हुस्न होता है पाकिस्तान किसी भी सियासी जमात का, बरसर इक़्तिदार के दरमियान, बरसर इक़्तिदार पार्टी होती है, अपोजिशन होती है, उनके दरमियान ये महाजराई जारी रहती है। उन्होंने ये तजावीज़ पेश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम तर चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए सिर्फ काम पर ही तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाए। और सादिया सुहेल राना साहब से भी हमने बात की, उनका यही कहना था कि हमने बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा अच्छा फीडबैक दे रही है, सेहत के हवाले से भी उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन जब उनसे बात की गई पंजाब के वज़ीर आला के हवाले से, उनकी तब्दीली के हवाले से, तो उनका भी यही कहना है कि इसका कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसके साथ ही अपने फीडबैक से आप हमें ज़रूर आगाह कीजिए और देखते रहिए ऑन रिकॉर्ड।